Today, under Improve Further series, we are going to cover the chapter A Short Monsoon Diary by Ruskin Bond, and I'm your lifelong friend, Vineet. First and foremost, we are going to do the summary of this chapter. I've titled this slide as From the Leaves of Ruskin's Diary. Leaves means pages. The chapter brings forward date wise diary entries that revolve around the monsoon season in the hills. So this chapter basically talks of date-wise diary entries. So diary is basically we keep to record information or data, right, or any kind of event. तो हम लोग डायरी इसके लिए रखते हैं नॉर्मली, राइट. और ये पर्टिकुलर डायरी एंट्रीज जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी हैं और जो एक्सट्रैक्ट्स हमने लिए हैं इस चैप्टर में जो लिए गए हैं, they are simply revolving around, that is, they are talking about monsoon season, that is rainy season in the hills. पहाड़ों के rainy season के बारे में है. How many of you maintain diaries? I mean, in the past I used to do it. मेरे पास एक डायरी थी and it was very personal to me because every day in the evening or at night I used to make diary entry that what all happened during the day. So many people do it. Many people make diary entries and these diaries are very personal and special to them. Read from the diary of Anne Frank to discover how a diary can become the best friend. So there's a beautiful chapter and in fact a book, right, from the diary of Anne Frank. And it showcases how a diary becomes the best friend of this girl, a teenager. The setting of this chapter is Mussoorie, which is in Uttarakhand, and it is in Dehradun district, around 35 kilometers from Dehradun. And several entries help you to visualize monsoon season in the hilly regions and shifting from monsoon to winter and ending of winter season. तो जितनी भी एंट्रीज हैं इसमें जो दी गई हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी से ली गई हैं वो दे विल हेल्प यू टू विजुअलाइज, दे विल हेल्प यू टू सिंपली थिंक अबाउट द मॉनसून सीजन इन द हिली रीजन्स. जो उत्तराखंड में मसूरी में लैंडौर में बेसिकली वो रहते हैं. मसूरी में एक छोटी सी जगह है लैंडौर, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो उसके बारे में है ये कि आप विजुअलाइज कर पाएंगे, आप विविडली इमेजिन कर पाएंगे, राइट, कि हाउ द मॉनसून सीजन इज इन दैट पार्ट ऑफ द हिल एंड हाउ monsoon season it shifts to winters and then ending of the winter season. So I'm going to read out the summary of all the diary entries for you to understand, and of course we have done it entry by entry and we have done glossary at the same time question answers, so we have completed it all. But just to get a gist of it, थोड़ा सा summarized way में लेने के लिए I have put it in this way. So on June 24th, the sadness of mist had taken the hill in its grip. So पहली एंट्री जो है that is of June 24th. So sadness of mist, जो mist क्या होती है? Mist होती है that is the water droplets suspended in the air that reduce the visibility. तो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर के अंदर होते हैं, सस्पेंडेड इन द एयर मतलब एयर में होते हैं, और उसकी वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, आगे देखने की क्षमता जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है. सो मिस्ट ने जो सैडनेस ऑफ मिस्ट है, सैडनेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज देन कम्स कंप्लीट साइलेंस, राइट. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट वंस वी आर गोइंग टू रीड द एंट्री. सो उस मिस्ट ने अपनी इस हिल को पूरी अपनी ग्रिप में ले लिया था, राइट, पूरे अपने क्लचेस में ले लिया था. जून 25th टॉक्स ऑफ अर्ली शावर्स. अर्ली शावर्स का मतलब फर्स्ट डाउनपोर या फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ रेन, राइट, टचिंग द हिल सरफेस. वो हुआ कब? जून 25th को. June 25th entry shares surfacing of some seasonal visitors like a leopard, thousands of leeches and colorful minivets. सो जून 27 की जो एंट्री है, डायरी एंट्री है, उसमें है कि सीजनल विजिटर्स आर दोज विजिटर्स हु कम ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम फॉर अ स्पेसिफिक टाइम टू अ स्पेसिफिक लोकेशन. ठीक है ना, एक पर्टिकुलर जगह पे आते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, उनको हम सीजनल विजिटर्स कहते हैं. तो वो कौन कौन है यहाँ पे? लेपर्ड, लीचेस एंड कलरफुल मिनीवेट्स. मिनीवेट्स भी एक प्रकार की, एक टाइप की बर्ड्स होती हैं, स्मॉल बर्ड्स होती हैं. August too had rain
ऑल नाइट. तो अगस्त 2 में जो डायरी एंट्री है कि पूरी रात बारिश हुई, राइट, इट रेन्ड ऑल नाइट. August 3 entry mentions sunrise and the living beings stepping out. तो जो August 3rd की entry है, that tells that the rains have stopped, the sun has risen, and people have stepped out. Not only people, but other living beings as well. It is completely opposite on August 12, where it is unstoppable rain and permanent cover of mist. अब जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज ऑफ August 12 और वो बिल्कुल ऑपोजिट है. सनराइज कहीं दूर दूर तक नहीं है एंड द रेन्स आर अनस्टॉपेबल, एंडलेस रेन्स एंड परमानेंट कवर ऑफ मिस्ट. तो जो मिस्ट है इट्स नॉट गेटिंग रिमूव्ड एट ऑल, राइट. The sun did not rise for 8 or 9 days. The hills turned lush green and late monsoon flowers started to bloom. तो 8-9 दिन तक सनराइज हुआ ही नहीं, right? That is basically from August 3rd, maybe, or maybe August 4th till August 12th, right? कोई सनराइज बिल्कुल नहीं हुआ और जो हिल्स हैं वो कंप्लीटली लश ग्रीन हो गए, कंप्लीटली एब्सोल्युटली ग्रीन हो गए. एंड जो लेट मॉनसून फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स, वो स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स दैट सिंपली ब्लूम ड्यूरिंग मॉनसून, वो ब्लॉसम होने लगे, वो ब्लूम होने लगे, वो खिलने लगे. August 31 entry mentions that the growth of monsoon vegetation has reached its highest point. तो जितना मॉनसून के टाइम पे वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, जितने ब्लॉसम होने होते हैं वो बिल्कुल अपनी पीक पे पहुंच गए, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए. Various flowers are blooming and snakes and rodents have come out to take suitable shelters. तो बहुत सारे फ्लावर्स अलग अलग स्पीशीज के, स्पेशली मॉनसून फ्लावर्स, दे आर ब्लूमिंग, राइट, दे आर ब्लॉसमिंग. और स्नेक्स और रॉडेंट्स बाहर निकल के आ गए हैं एंड दे हैव टेकन सूटेबल शेल्टर्स. हम आगे पढ़ेंगे. दे हैव टेकन शेल्टर्स इन द रूफ, गोडाउन्स, एटिक्स एंड सो ऑन. October 3 entry talks of the transition from monsoon into winter rain, which implies snowfall at higher altitudes. तो October 3 को अब क्या हुआ है, मॉनसून खत्म हो गया, विंटर रेन आ गई है, विच सिंपली टेल्स स्नोफॉल, राइट. वो भी हायर ऑल्टीट्यूड्स पे. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट्स पे, तो ज़्यादा हाइट्स पे वहीं पे स्नोफॉल होता है ज़्यादा. इन द January 26th एंट्री द डायरिस्ट कहते हैं जो डायरी लिखता है, who writes the diary, expressed of his loneliness and emptiness. तो वो अपना एक्सप्रेस कर रहा है लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, बिकॉज ही हैड अ फ्रेंड हु वॉज गॉन एंड नाउ ही इज ऑल बाय हिमसेल्फ, अकेला रह गया बिल्कुल. द लास्ट डायरी एंट्री मेंशन्ड इज ऑफ March 23rd, विच मार्क्ड एंड ऑफ विंटर. तो जो March 23rd की जो लास्ट एंट्री है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, that is mentioning that winters have come to an end, right? सर्दियाँ खत्म हो गई हैं. After the hailstorm for half an hour, the sky turns clear with a rainbow forming. So hailstorm आता है, right? When pellets of hail simply come to the earth's surface, जो हम आगे देखेंगे भी, right? आधे घंटे तक hailstorm चलता है और फिर sky जो है वो completely clear हो जाती है, right? And there appears a rainbow. So this is what is the summary, and now we are going to move from one entry to another. We are going to understand the word meanings and followed by question answers, and I have put a lot of images as well for your better understanding. So stay tuned and enjoy it to the hilt. We have come to the first diary entry dated June 24th. So first and foremost, we are going to look at the gist of it, at the summary of it, and then we'll read it completely. The first diary entry is of June 24th, when the author writes that monsoon mist has covered the entire hill and has spread sadness and complete silence. तो जो पहली डायरी एंट्री है that is of June 24th. जब author कौन है यहाँ पे, रस्किन बॉन्ड. You have to remember this, right? In case if a question comes, you must know that who is the author and you must remember, right? So that you can write about him or write the name. So monsoon mist आ चुकी है, right? That is visibility has reduced.
और पूरे हिल को उसने कवर कर लिया है, विच हैज़ स्प्रेड सैडनेस। हर जगह मतलब बहुत मायूसी आ गई है, राइट? दुख सा माहौल हो गया है, एंड कंप्लीट साइलेंस, राइट? देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Before you read, do you know what a diary is? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. So diary basically है एक बुकलेट फॉर्म होता है जिसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? उसको हम स्टोर करते हैं. रिकॉर्ड का मीन्स होता है स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट? लंबे समय के लिए. अब मान लीजिए आपने कुछ कहीं लिख दिया, सो दैट इज गोइंग टू स्टे ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. तो आप डायरी इसलिए भी मेंटेन कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस आई मेंटेन इट नाउ डेज. सो ऑन अ डेली बेसिस आई मेंशन दैट व्हाट आई हैव टू डू इमीडिएटली, तुरंत मुझे क्या करना है, और बाद में थोड़े दिन बाद क्या करना है, मतलब कंप्लीट प्लानिंग ऑफ इट. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं समरी में. So in case if you ever get time, and in case if you can get hold of this book, that is the Diary of Anne Frank, a wonderful kid, right? तो उसके बारे में पढ़िएगा, and it's one of the most famous, globally most famous diaries got published as a book. Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent intricacies of nature, silent miracles of nature and life's little joys and regrets. So यहाँ पे कुछ extracts है. Extracts means taken from a bigger portion. तो मतलब ये तो छोटे पोर्शंस हैं, मगर जो कंप्लीट डायरी, ऑफ कोर्स सिर्फ 7-8 डायरी एंट्रीज नहीं होंगी, बहुत सारी डायरी एंट्रीज होंगी, उसमें से कुछ डायरी एंट्रीज निकाली हैं. What are they portraying? Portray का मतलब होता है describe or depict something in an artistic, written or acted means. तो portray का मतलब होता है describe कर रहा है, depict कर रहा है, या showcase कर रहा है. क्या showcase कर रहा है? The silent miracles. ठीक है ना? Silent miracles means magic of nature, mother nature. ठीक है? And life's little joys and regrets. तो जो हमारी ज़िंदगी के छोटी छोटी खुशियाँ हैं. एंड रिग्रेट्स. रिग्रेट्स इज़ अ फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर पास्ट मिस्टेक्स. जैसे हम कई बार कहते हैं ना, काश मैं ऐसा करता, वो रिग्रेट होता है. काश मैंने ऐसा किया होता, राइट? या काश मैंने ऐसा नहीं किया होता. सो these all are regrets. So now let's start reading. As it has mentioned, read on. So June 24th entry is the first day of monsoon mist. So mist is cloud of tiny water droplets suspended in the air that reduce visibility. तो cloud of tiny water droplets suspended in the air, जिससे visibility reduce हो जाती है, right? And it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. And it's very weird, it's bizarre कि जितनी भी बर्ड्स हैं दे फॉल साइलेंट, बिल्कुल दे गो क्वाइट जैसे ही मिस्ट आती है, राइट? परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो melancholy. melancholy मतलब होता है वेरी सैड, राइट? melancholy मीन्स वेरी सैड. परहैप्स मतलब मे बी. सो मे बी बिकॉज I mean this is why mist is considered to be a very sad state. बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है हर जगह, बिकॉज इज कंप्लीट साइलेंस. नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. तो वो सिर्फ हिल्स को कंसील नहीं करते हैं, हाइड नहीं करते हैं, छिपाते नहीं हैं. अब मिस्ट में क्या होगा, आप मिस्ट में अगर देखना चाहेंगे तो आपकी विजिबिलिटी इतनी रिड्यूस हो चुकी होगी कि यू कैन नॉट सिंपली सी एनीथिंग फर्दर. आगे का कुछ देख ही नहीं पाएंगे. सो जो हिल्स हैं वो पूरे के पूरे कवर्ड हो गए हैं, पूरा हाइड हो गए हैं, छिप गए हैं. किसमें? मिस्ट में. और देयर इज कंप्लीट साइलेंस एज वेल. ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग. सिर्फ 1 घंटे पहले जो ट्रीज हैं वो रिंग कर रहे थे, मतलब दे वर बर्ड्स विच वर सिंगिंग इन द मेलोडियस वॉइस.
बड़ी खूबसूरत सुरीली आवाज़ में बर्ड्स गाना गा रही थी सिर्फ 1 घंटे पहले. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अब जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, डेथली स्टिल है, मतलब कंप्लीटली साइलेंट, राइट, एज दो इट वर मिडनाइट, एज इफ कि रात का 12 बज चुका है, राइट. थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. सो अब उस मिस्ट में से बीजू, एक बच्चा है वहां पे, अपनी सिस्टर को बुला रहा है, अपनी बहन को बुला रहा है. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैनॉट सी हिम. सो हम नॉर्मली क्या होता है, हम डायरी एंट्रीज जो होती हैं हम फर्स्ट पर्सन में कहते हैं. तो रस्किन बॉन्ड इज राइटिंग कि मैं उसको सुन तो पा रहा हूँ, वो रन भी कर रहा है हिल साइड पे, मगर आई कैन नॉट सी हिम. वाई ही कैन नॉट सी हिम? बिकॉज ऑफ द मिस्ट, राइट. On this particular page, we have 2 diary entries, that is of June 25th and June 27th. So first and foremost, we are going to read the summary, followed by understanding each and every word line by line. So June 25th entry states, the hills receive its first monsoon rain, which was warm and humid, unlike extremely cold. सो हिल्स में पहली मानसून रेन आती है, पहली जो रेनी सीजन की रेन है पहली आ रही है. एंड इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड. ह्यूमिड होता है व्हेन यू स्टार्ट परस्पायरिंग, जब आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, बहुत पसीना आने लगता है. एंड इट्स नॉट कोल्ड एट ऑल. द मानसून प्लांट्स लाइक कोबरा लिली starts to come to the surface, and when a schoolboy asked the author to describe the hill station and valley in one sentence, he says it is a heaven which looks mysterious and unreal. So monsoon जो plants हैं like cobra lily, right, it's a kind of monsoon plant, आपको rainy season में ब्लूम करता दिखेगा. वो अब सरफेस पे आने लगा है, अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा है. और जब एक स्कूल का बच्चा ऑथर से पूछता है, किस ऑथर से, रस्किन बॉन्ड से, कि आप क्या हिल स्टेशन को, वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक सेंटेंस में बता सकते हैं. सो ही सेज इट इज़ अ हेवन, ये एक स्वर्ग है, विच लुक्स मिस्टीरियस एंड अनरियल, जो टेम्परेरी है, जो मिस्टीरियस है, जो अनरियल सा है, राइट. कमिंग टू द एंट्री ऑफ June 27th, and we are going to look at the summary first. The arrival of some seasonal visitors started like a leopard and many thousand leeches. तो इनका आना शुरू हो चुका होता है, एक लेपर्ड आ चुका होता है, सीजनल विजिटर है, राइट. और बहुत थाउजेंड्स ऑफ लीचेस आ चुकी होती हैं. लीचेस सिंपली, इन केस इफ दे गेट स्टिक टू योर बॉडी, दे स्टार्ट सकिंग योर ब्लड. वो ब्लड सक करने लग जाती हैं, ब्लड चूसने लग जाती हैं. He shared that the leopard took away a dog from near the servant's quarter and almost got hold of Biju's cow when his mother came running and cursing loudly. तो अब ये शेयर करता है कौन, ऑथर, दैट इज़ रस्किन बॉन्ड, कि लेपर्ड जो है वो एक कुत्ते को सर्वेंट्स क्वार्टर के पास से, जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, उनका क्वार्टर का मतलब है उनके घर के पास से, राइट, वहाँ से कुत्ते को लेके चला जाता है. एंड ऑलमोस्ट गॉट होल्ड ऑफ बीजूज काउ. और बीजू जो हम लोगों ने प्रीवियस एंट्री में पढ़ा, हु वॉज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर को बुला रहा था, उसी के घर से उसकी काउ के ऊपर भी अटैक करता है. बट वो बच जाती है काउ, बिकॉज हिज मदर, उसकी मम्मी जो थी बीजू की, शी केम रनिंग एंड कर्सिंग लाउडली. और वो बहुत ज़्यादा मतलब गालियाँ देती हुई, उसको कर्स करती हुई आती हैं. तो वो उनकी आवाज़ सुन के इट सिंपली फ्लेड्स अवे, राइट, भाग जाता है. द एंट्री ऑल्सो मैंशंस द अराइवल ऑफ मिनीवेट्स. सो एक टाइप के बर्ड्स हैं, तो उनका भी ये पर्टिकुलर जो एंट्री है June 27th, इट ऑल्सो covers that Miniwets as a couple also have arrived. And now we'll start reading the first entry, that is June 25. Some genuine early monsoon rain, warm and humid and not that cold. High altitude stuff we have been having all year. तो अब वो कहता है कि some genuine, some authentic early monsoon rain, they have arrived. ठीक है ना. अर्ली मानसून, जब स्टार्टिंग ऑफ द मानसून होता है, उसकी पहली जो शार होती है, पहली रेन होती है, दैट हैज़ अराइव्ड, विच इज़ वार्म एंड ह्यूमिड.
मतलब उसमें प्रेसिपिटेशन लेवल हाई है, उसमें मतलब स्वेटिंग ज़्यादा होगी, वार्म भी है, एंड नॉट दैट कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ। और जब कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ का मतलब जब बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड रेंस आती हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, राइट, जो कि पूरे साल होती हैं वहाँ पे। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, तो प्लांट्स को भी ये चीज़ पता है कि भाई पहली शार आ चुकी है, मानसून का पहला रेंज आ चुकी हैं। And the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. So, जो लिली कोबरा है, राइट, a kind of plant species, it rears का मतलब होता है lifts, उठाया उसने क्या, अपना सिर, हेड का मतलब सिर होता है, from the ferns, राइट. सो ferns आप देखेंगे एक टाइप के vascular plants होते हैं, राइट, that simply reproduce, right, on their own. They don't have seeds, they don't have flowers. So मैंने एक इमेज भी ferns की डाली हुई है, ठीक है. So anyway, so उसके बीच में से लिली कोबरा निकलने लग जाता है. और ये कैसे इसको दिखाई देता है इस ऑथर को, एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, तो वो बैंक की तरफ जा रहा होता है और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, तब उसको ये चीज़ दिखाई देती है, साइड दिखाई देता है. द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टन प्रिवेसी, राइट. सो जो मिस्ट है वो मैनेज कर पाती है सर्टन प्रिवेसी. प्रिवेसी मीन्स फ्री फ्रॉम पब्लिक अटेंशन, तो मतलब पब्लिक की अटेंशन जो मासेज हैं वो उनको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, दैट इज प्रिवेसी. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. तो एक स्कूल का बच्चा, एक स्कूल गोइंग किड लाइक यू गाइस, asked me, मतलब he is simply talking about himself, that is Ruskin Bond, कि आप हिल स्टेशन को और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कीजिए, राइट, कि what it is all about, how do you view it. So he says that a paradise matlab heaven, that might have been matlab that simply looks so mysterious, so unreal, because it is now enveloped in the mist and it's so silent, so still, so calm, right. Coming to the entry of June 27th, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. Heralded मतलब signaling arrival, तो वो बता रहा है कि भाई आ चुके हैं. कौन कौन? Some seasonal visitors. Seasonal visitors means inhabitants or tourists or wildlife that appear at a location only during certain times of a year. तो एक particular location में लोकेशन पे कुछ समय के लिए, ठीक है ना, फॉर सर्टन टाइम पीरियड, ये पर्टिकुलर चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे इनहैबिटेंट्स आते हैं, उनको हम सीजनल विजिटर्स कहते हैं, राइट. तो यहाँ पे कौन कौन से सीजनल विजिटर्स आ चुके हैं? एक लेपर्ड और बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ लीचेस आ चुकी हैं. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. तो सर्वेंट क्वार्टर्स है जो स्कूल के नीचे है, राइट, वहाँ से उसने एक डॉग को लिफ्ट कर लिया, मतलब लेके भाग गया, मार दिया उसको. In the evening, it attacked one of the Biju's cows, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. तो उसने इवनिंग में, शाम में, बीजू की एक गाय पे, इसका मतलब बीजू के पास बहुत सारी गायें हैं, राइट, एटलीस्ट मोर दैन वन, उस पर अटैक किया, राइट, बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर. फ्लेड का मतलब होता है टू रन अवे, भाग गया. एट द अप्रोच ऑफ का मतलब हो गया ऑन अराइवल, जब उसकी मम्मी आई, राइट. एंड व्हाट वाज शी डूइंग while when she came, who came screaming imprecations. Screaming मतलब चिल्लाते हुए, at the top of the voice. Imprecations मतलब curse, right. तो जब वो आई चिल्लाते हुए वो भाग गया. As for the leeches, I shall soon get used to a little blood letting every day. और जो लीचेस हैं, बिकॉज द पॉइंट इज दैट ऑल द इनहैबिटेंट्स, जितने लोग वहाँ पे रहते हैं उन हिल्स में, उनको जाना जंगल में से ही पड़ता है, ठीक है ना, दैट्स देयर वॉकिंग एरिया, राइट. तो उनमें किसी ना किसी पे लीच कभी ना कभी पकड़ लेगी उनको,
and it will start sucking blood. तो जो ऑथर है रस्किन बॉन्डी सेज कि अब मैं मुझे हैबिट डाल लेनी चाहिए. आई shall soon get used to a little bloodletting. Get used to मतलब get accustomed. I should get into the habit. किस चीज़ के लिए? लेटिंग गो सम ब्लड. थोड़ा थोड़ा मेरा खून जाता रहेगा. और कौन खून लेके जाएगा? लीचेस पीती जाएंगी उस खून को, राइट, एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस. अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स. द फीमेल्स आर येलो. सो स्कारलेट कहते हैं अ विविड रेड कलर, बहुत ब्राइट सा और बहुत क्लियर सा रेड कलर होता है, उसको हम स्कारलेट कहते हैं. उस कलर की मिनीवेट्स जैसे मैंने बोला एक टाइप की बर्ड्स होती हैं, और इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो येलो कलर में होती हैं, पीले कलर में होती हैं. फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जूल्स. फ्लिटिंग मतलब दे आर सिंपली जंपिंग, राइट, साइलेंटली बट धीर मतलब शांति के साथ. अमंग द लीव्स पत्तों के बीच में से, लाइक ब्रिलियंट जूल्स. जूल्स कहते हैं प्रेशियस कट एंड पॉलिश्ड जेम स्टोन्स को. बहुत प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, बहुत कीमती पत्थर होते हैं, उनको हम जूल्स कहते हैं. और वो कीमती पत्थर जो प्रॉपर कट होते हैं, पॉलिश्ड हुए होते हैं, उनको हम जूल्स कहते हैं. नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैनॉट कंसील देमसेल्व्स. तो कितने भी वो डेंस ट्रीज हों, डेंस मतलब बहुत सारे उनके पत्ते हों, मगर ये जो बर्ड्स हैं दैट इज मिनीवेट्स, वो इतनी ब्राइटली कलर्ड हैं, उनके कलर्स इतने ब्राइट हैं दैट दे कैनॉट कंसील देमसेल्व्स, दैट दे कैनॉट हाइड देमसेल्व्स. अपने आप को छिपा नहीं पाते हैं. ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड. तो बिल्कुल चुपचाप रह के, राइट, वो कोशिश करते हैं. समटाइम्स मीन्स ऑन सम ओकेजन्स कि वो कंट्राइव स्किलफुली प्लान. कंट्राइव का मतलब होता है स्किलफुली प्लान करते हैं कि उनको कोई नोटिस ना करे, वो किसी के अटेंशन में ना आए, कोई ये ना किसी को पता चले. नोबडी शैल डिस्कवर दैट मिनीवेट्स आर हियर, राइट. अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज. और उनके साथ आते हैं ड्रोंगोज, अगेन काइंड ऑफ वाइल्ड बर्ड्स, ठीक है. अननेसेसरीली अग्रेसिव. अननेसेसरीली मतलब विदाउट एनी नीड, क्योंकि जो ज़रूरत नहीं हो फिर भी अग्रेसिव है. अग्रेसिव मीन्स हॉस्टाइल बिहेवियर, मीन्स अनफ्रेंडली बिहेवियर, एंड दे इवन टेंड टू अटैक एज वेल. वो अटैक करने पे भी आ जाते हैं. चेजिंग द मिनीवेट्स अवे. चेजिंग अवे मतलब फोर्सिंग टू डिसअपियर क्विकली. वो उनको भगाने की कोशिश करते हैं. कौन? ड्रोंगोज. किसको? मिनीवेट्स को. सो नाउ विल मूव टू सम इमेजेस related to the entries we have done for our better understanding. We have now come to a set of images for our better and practical understanding. The first image is of mist. The second one is jewels, that is properly cut, polished, precious gemstones. The third one is scarlet, that is vivid red color. The next image is of minivets. The scarlet one is a male and the yellow one is a female. The next image is of a drongo. The next image exhibits or showcases a leech. Coming to the next one, a leopard is resting on one of the branches of a tree. And the last one is tree creeper. We have now come to the next three entries, that is of August 2nd, August 3rd and August 12th. But before that, we are going to read the last paragraph of the entry dated June 27th. A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. So a tree creeper, अभी हम लोगों ने previously image देखी. It is an insectivorous bird. इंसेक्टिवोरस उसको कहते हैं दैट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, जो सिर्फ कीड़े मकोड़े खाता है. तो वो बर्ड ऐसी है जो सिर्फ इंसेक्ट्स खाती है. सो दैट इज़ मूविंग रैपिडली अप, ऊपर की साइड जा रही है. इट इज़ मूविंग अप रैपिडली मतलब क्विकली. किस पे? ट्रंक ऑफ द ओक ट्री. ट्रंक होता है जो मेन स्टेम होता है, जो बहुत वुडी होता है, थिक होता है. वो उस ट्रंक पे, ओक ट्री के ट्रंक पे, विच इज़ अ टेम्परेट ट्री, उस पे ऊपर जाती जा रही है. स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे. स्नैपिंग अप का मतलब होता है गेटिंग देम क्विकली एंड ईगरली. जल्दी जल्दी उन इंसेक्ट्स को खाती जा रही है ऑन इट्स वे. नाउ दैट द रेन्स आर हियर. अब जबकि बारिश आ चुकी है, इट्स मॉनसून सीजन, देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड.
डर्थ कहते हैं लैक ऑफ मतलब कमी को. अब खाने पीने की कोई कमी नहीं है किसके लिए? इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के लिए, राइट. सो नाउ विल लुक एट द समरी ऑफ ऑल दीज 3 एंट्रीज dated August 2, August 3 and August 12th, and then we'll move ahead with comprehension check at the same time to understand all the entries better, word for word, line by line. So August, second entry reads, it rained the whole night but without any storm or thunder. It kept the author awake. The tin roof was protecting the residents but the leakages were letting some raindrops enter from here and there. तो पूरी रात बारिश हुई बट देयर वाज नो स्टॉर्म, कोई आंधी नहीं थी, कोई लाइटनिंग नहीं थी. इट केप्ट द ऑथर अवेक. ऑथर दैट इज रस्किन बॉन्ड पूरी रात जगे रहे वो. द टिन रूफ वॉज प्रोटेक्टिंग द रेजिडेंट्स बट द लीकेजेस वर लेटिंग सम रेन ड्रॉप्स एंटर फ्रॉम हेयर एंड देयर. तो जो टिन की रूफ है, कॉरुगेटेड टिन रूफ है, दैट इज प्रोटेक्टिंग द पीपल हु आर सिंपली इनसाइड द बिल्डिंग, इनसाइड द हाउस. ठीक है, तो पूरा का पूरा रेन तो नहीं आ पा रहा है बट थोड़ी थोड़ी रेन ड्रॉप्स उनके ऊपर कहीं ना कहीं से आ रही हैं, इधर उधर से घर के अंदर आ रही है. नॉट एग्जैक्टली ऑन द रेजिडेंट्स. रेजिडेंट वो होता है जो वहाँ रह रहा होता है, उनके ऊपर नहीं आ रही है बट स्टिल इट्स एंटरिंग. एट द सेम टाइम जो पिटर एंड पैटरिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स है, जो रेन ड्रॉप्स का गिरना है ऑन द टिन रूफ. टिन बेसिकली इज एन एलिमेंट, ठीक है, तो उसके ऊपर गिरेगा जब भी किसी मेटल, किसी एलिमेंट के ऊपर कोई भी फ्लूइड गिरेगा, स्पेशली कोई लिक्विड गिरेगा, सो दैट प्रोड्यूसेस सम नॉइज. उस नॉइज की वजह से भी ऑथर सो नहीं पा रहा है. कमिंग टू द समरी ऑफ August 3rd, the rain stopped, the bright sun shone, and the author could hear a woman chopping the sticks and the tinkle of cowbells. अब नेक्स्ट डे बारिश बंद हो चुकी है. The rain has stopped, right? In case if we go in the present, the bright sun shone. अब सनराइज हो गया, बड़ा ब्राइट सा सन निकला हुआ है. एंड द ऑथर कुड हियर अ वुमन चॉपिंग द स्टिक्स. और ऑथर को, जो रस्किन बॉन्ड है, उसको सुनाई देता है एक वुमन है, एक औरत है जो स्टिक्स चॉप कर रही है, जो लकड़ी काट रही है. एंड द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, दैट इज रिंगिंग ऑफ काउ बेल्स. काउस के नेक पे हम बेल बांध देते हैं, घंटी बांध देते हैं, उसकी टिंकलिंग हो रही है, उसकी रिंगिंग हो रही है व्हेन इट इज मूविंग. A crow on the oak tree freed its feathers from the raindrops and cows. अब एक क्रो है, ओक ट्री पे बैठा हुआ है, उसने अपने फेदर्स को रेन ड्रॉप से फ्री कर रहा है. दैट इज उसके सारे फेदर्स में पूरा पानी पानी हो गया है वो. इट हैज़ गॉट सोक्ड इन द रेन वाटर एंड नाउ इट इज शेकिंग इट्स बॉडी. पूरा शेक कर रहा है ताकि सारे के सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर चले जाएं. दे शुड सिंपली बी थ्रोन आउट. एंड काउस, जैसे काव काव करता है कौआ, दैट इट्स सिंपली काउइंग. The water was dripping from a drain pipe. Then the melodious song of the whistling thrush was heard. तो वाटर कहीं एक ड्रेन पाइप है, उससे ड्रिप हो रहा है, मतलब धीरे धीरे देयर इज अ स्मॉल लीकेज, राइट. एंड देन द ऑथर हियर्स द मेलोडियस सॉन्ग. मेलोडियस का मतलब हुआ सुरीला गाना, राइट. किसका? विस्लिंग थ्रश का. इट्स अ ब्यूटिफुल बर्ड. तो वो ऑथर को सुनाई देता है. एंड नाउ कमिंग टू द समरी फॉर August 12th. The day witnessed endless rain which was continuing for the last 8 or 9 days and the region was covered with mist. तो पिछले 8-9 दिन से लगातार बारिश हो रही है, endless, unstoppable, right? This is the entry for August 12th. And the entire region has got covered with mist. हर जगह mist है, तो visibility और reduce हो रही है, और thick layer mist की बनी हुई है वहाँ पे. Everything was soaked in rain water. सब कुछ गीला है, पूरा damp है. There was greenery every inch and the late monsoon flowers started blossoming. हर जगह हरियाली है. It's all green every inch, everywhere. And जो late monsoon flowers हैं, right? They have started blossoming. They have started blooming. वो खिल रहे हैं. And now we'll move ahead reading the entries line by line, word for word, and we'll also do the comprehension check. We have now come to the entries which we are going to read thoroughly and try to understand them fully. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. तो पूरी रात it's been raining, and drumming means it is producing noise. जैसे ड्रम में प्रोड्यूस होता है धम धम धम,
on the corrugated tin roof. Corrugated कहते हैं shaped into a series of parallel ridges and grooves so as to give added rigidity and strength. तो मैं भी आपको corrugated tin roof दिखाऊंगा, right, in one of the images for your better understanding. एंड इसमें ऐसे रिजेस और ग्रूव्स बनाए जाते हैं सो दैट इट बिकम्स मोर रिजिड, राइट, बिल्कुल स्टिफ हो जाए एंड उसमें स्ट्रेंथ ऐड हो जाए. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. तो कोई स्टॉर्म नहीं है, कोई आंधी नहीं है, कोई लाइटनिंग नहीं है, बट स्टेडी मीन्स बैलेंस्ड स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर है. स्विश का मतलब होता है हिसिंग साउंड, बहुत लाइट सी साउंड आती है व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड और लिक्विड, राइट, ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर. ट्रॉपिकल होता है हॉट, डाउनपोर कहते हैं रेन्स को. धीरे धीरे रेन्स हो रही हैं, कोई स्टॉर्म नहीं है, कोई लाइटनिंग नहीं है, कोई आंधी नहीं है. It helps me to lie awake. At the same time, it doesn't keep me from sleeping. तो it is helping me to lie awake. मैं आराम से उठा हुआ हूँ. कौन कह रहा है ये, कौन लिख रहा है ये, कौन एक्सप्रेस कर रहा है? The author, that is Ruskin Bond. But it is not so that it is not letting me sleep. मैं सो भी सकता हूँ. It is a good sound to read by. बड़ी प्यारी सी साउंड है to understand. The rain outside, बाहर बारिश हो रही है. The quiet within, अंदर शांति है, बिल्कुल साइलेंस है. And although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, और जो roofs हैं, जो tin की roofs हैं, they are given to springing. Springing कहते हैं suddenness को, all of a sudden. Unaccountable leaks, जो leaks कहीं से भी हो सकती हैं. Leakages in terms of leaking of water from the roof. There's a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. फिर भी एक feeling है अंदर कि we are not being touched. किससे? रेन से. बट फिर भी एक प्यारा सा टच है रेन्स का. तो प्यारा सा टच कैसे? कहीं कहीं छोटी छोटी इनर वॉल्स में से लीकेजेस भी हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी. द वाटर इज ड्रिपिंग इनसाइड द हाउस. एट द सेम टाइम इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एज वेल. तो आप बाहर भी बड़ा प्यारा सा नज़ारा देख सकते हैं, राइट. इट्स अ सीन विच इज़ ब्यूटिफुल, विच इज़ अनफॉरगेटेबल. Now we come to August 3rd entry. The rain stops, the clouds began to break up, the sun strikes the hill on my left. अब rains stop हो गई हैं, right? Now there are no rains. The clouds began to break up. तो जो clouds हैं, now the sky is clearing up, right? आसमान साफ हो रहा है. The sun strikes the hill on my left. और sun आता है, hit करता है hill को on the left hand side. ठीक है ना? लेफ्ट किसके? ऑथर के. वहां से सनराइज हुआ है. अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स. तो एक औरत लकड़ियां काट रही है. आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स. और इस ऑथर को सुनाई दे रहा है रिंगिंग ऑफ द काउ बेल्स, राइट. इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड काउज डिसकॉन्सोलेटली. तो एक क्रो है जो कि ओक ट्री पे बैठा हुआ है. इट सिंपली शेक्स द रेन ड्रॉप्स बिकॉज इट हैज़ गॉट कंप्लीटली सोक्ड. पूरा वेट हो चुका है, पूरा गीला हो चुका है. सो अपनी फेदर्स को शेक कर रहा है सो दैट द रेन ड्रॉप्स सिंपली गो आउट एंड ही ड्राइज हिमसेल्फ. वो बिल्कुल सूख जाए उसकी बॉडी. एंड काउज डिसकॉन्सोलेटली. और काउ करता है जैसे कौ कौ अपनी जो वॉइस निकालता है, जो साउंड निकालता है. डिसकॉन्सोलेटली मतलब विथ मच सैडनेस, बहुत सैड होके मतलब काउइंग कर रहा है. And suddenly clean and pure the song of the whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depths of the ravine. Or suddenly, all of a sudden, right, clean and pure the song of the whistling thrush emerges. और एक बड़ा प्यारा सा, बहुत क्लीन सा, बहुत प्योर सा, बहुत मेलोडियस सा एक सॉन्ग आता है ऑफ द विस्लिंग थ्रश. कहाँ से? इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट. एक बहुत प्यारा सा डार्क स्वीट सा सीक्रेट जैसा, मतलब एक राज के जैसा वो निकलता है फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रिवाइन, राइट. डेप्थ्स कहते हैं डीपनेस, और रिवाइन कहते हैं अ डीप नैरो गॉज विथ स्टीप साइड्स. मैं अभी आपको इमेज में भी दिखाऊंगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, राइट. कमिंग टू द एंट्री ऑफ August 12th, we will do the remaining part of this entry on the next page, because some of the content has gone on the next page, but whatever it is there, we are going to read it. Endless rain,
एंड अ परमानेंट मिस्ट. अब क्या हो रहा है, कंप्लीटली अनस्टॉपेबल रेन्स हो रही हैं और परमानेंट मिस्ट है, राइट. द ब्लैंकेट ऑफ द मिस्ट इज परमानेंट. वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days. सो सनराइज हुआ ही नहीं है 8-9 दिन से. एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सब कुछ बिल्कुल गीला गीला है, राइट. पूरा गीला गीला है, वेट है. नो वेयर टू गो, कहीं जा भी नहीं सकते, इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे. पेस द रूम, look out of the window at a few bobbing umbrellas. So pace the room means walking back and forth, इधर उधर घूमना रूम के अंदर ही. And look out of the window, अपनी खिड़की में से बाहर देखना. At a few bobbing umbrellas, bobbing मतलब up, moving up and down. Umbrellas जैसे लोग जब चल रहे होते हैं तो उनके जो umbrellas हैं, जो छतरी है, जो छाता है, वो ऊपर नीचे हो रहा होता है. We have now come to images for our better understanding. The first one is corrugated tin roof. So you can see that the grooves are parallel, which simply give them more strength and make them rigid. The next one is ravine, right? And the next one is trunk of an oak tree. So that is the main stem, which is woody, which is very thick. Here are some blossoming images, बिल्कुल खिली खिली images हैं. The first one is balsam. The next one is dahlias. The next image is of begonias, and the last one is ground orchids. So these all are monsoon flowers which blossom during monsoon or during rainy season. And now is the time for comprehension check. There are 2 questions and we have the answers as well. So the first question is, why is the author not able to see Biju? ऑथर बीजू को क्यों नहीं देख पा रहा था, राइट. सो द आंसर इज द ऑथर कुड नॉट सी बीजू बिकॉज ऑफ द मिस्ट दैट कंसील्ड द हिल्स. सो बीजू को ऑथर इसलिए नहीं देख पा रहा था बिकॉज जो मिस्ट है जिसने पूरे हिल्स को हाइड कर लिया है, कंसील कर लिया है. ही कुड ओनली हियर हिज वॉइस बट कुड नॉट सी हिम. तो उसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही होती है, दैट ही वॉज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को बुला रहा था, बट वो देख नहीं पाता है. द second question is, question 2 is, what are the 2 ways in which the hills appear to change when the mist comes up? तो कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं, कौन से 2 ऐसे तरीके हैं या कौन से ऐसे 2 ways हैं जिसमें जो hills हैं वो change हो जाते हैं when the mist arrives, जब mist आती है. When the mist comes up, it covers the hill and spreads silence. तो पहले तो वो हिल्स को कवर कर लेती है, पूरा हाइड कर देती है, एंड इट स्प्रेड्स साइलेंस. हर जगह क्वाइटनेस फैला देती है, स्टिलनेस आ जाता है. Here we are on the next page, which has 2 more entries of August 31st and October 3rd. But before that, we are going to read the last paragraph of the last entry that we did, that was of August 12th. So at least it is not cold rain, तो बहुत ज़्यादा ठंडी रेन नहीं है, right? The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. So जो hillsides हैं वो बिल्कुल lush green है, बिल्कुल laden with flowers हैं. क्यों? क्योंकि लेट मानसून जो फ्लावर्स हैं, जो लेट रेनी सीजन में जो ब्लॉसम होते हैं, दे हैव बिगिन टू अपीयर. वो आने लग गए हैं. कौन कौन से? वाइल्ड बाल्सम, डहलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स. तो अभी जो 4 फ्लावर्स हम लोगों ने देखे थे जिनकी इमेजेस, वो सारे के सारे वहाँ पे ब्लॉसम हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं. So now we'll look at the summaries of the 2 entries dated August 31st and October 3rd, and then we'll look at them carefully, line by line, word for word. So the first summary for August 31st is, the monsoon growth had reached its highest level. तो जितनी growth होती है monsoon के time पे of the trees, plants, flowers, वो बिल्कुल highest level पे पहुँच गई है, peak पे पहुँच गई है. The seeds of the cobra lily were turning red, which indicated that rains will end soon. तो जो seeds हैं, जो बीजें हैं कोबरा लिली के, right, जो starting में appear हो रही थी, right, from the ferns, अब वो red होने लगा है. And that is an indication कि अब rains जो हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. They will come to an end. Different species of orchids and dahlias had beautifully covered the grassy slopes of Landor. तो जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं ऑर्किड्स की एंड डहेलियाज़ की, उन्होंने पूरा कवर कर दिया है ग्रासी स्लोप्स,
राइट, जो स्टीप एरियाज़ हैं, पूरे ग्रासी स्टीप एरियाज़ हैं ऑफ लैंडोर. लैंडोर एक बड़ी खूबसूरत सा छोटा सा हिल स्टेशन है इन मसूरी. मसूरी इटसेल्फ इज़ अ हिल स्टेशन, और उसके अंदर एक छोटी सी एक और रीजन है जिसको हम लैंडोर कहते हैं. Snakes and rodents had taken refuge in roof, attics and godowns as their holes got filled with water. जो स्नेक्स हैं एंड रोडेंट्स हैं, जैसे आपका श्रूज हो गए या आपके रैट्स हो गए, माउस, उन लोगों ने अपने होल्स में से निकल आए हैं बिकॉज दे हैव गॉट फिल्ड विथ वाटर एंड दे हैव टेकन रिफ्यूज, दे हैव टेकन शेल्टर. कहाँ पे? रूफ्स में, छतों में, एटिक्स में एंड गोडाउन्स में, जहाँ पे लोग रहते हैं. A shrew was roaming around in the house and grandmother scolds the children who were running after it for entertainment and instructed them not to kill it as it is lucky and brings money. So एक shrew जो है, जिसको हम छुछंदर कहते हैं, वो घर के अंदर घूम रहा है इधर उधर clumsily, right? एंड ग्रैंड मदर जो है वो स्कोल्ड करती हैं, डांटती हैं बच्चों को, हु वर रनिंग आफ्टर इट, जो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, फॉर देयर एंटरटेनमेंट, अपने एंटरटेनमेंट के लिए. एंड उनको इंस्ट्रक्ट करती हैं कि डोंट किल इट एज इट इज़ लकी, क्योंकि बिल्कुल उसको मारना मत जान से, बिकॉज वो लकी है एंड इट ब्रिंग्स मनी. उसका आना मतलब इंडिकेशन है दैट मनी विल फ्लो इन, द मनी विल पोर इन. द ऑथर ऑल्सो रिसीव्स अ चेक इन द ईमेल. और जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड, उसके पास भी एक चेक आता है, पैसों का एक चेक आता है, राइट. बहुत बड़े अमाउंट का नहीं होता है बट स्टिल. एंड किससे आता है? बाय पोस्ट, वाया पोस्ट. कमिंग टू द समरी ऑफ October 3, द एंट्री. There was a shift from monsoon to winter rains that witnesses snowfall at greater heights. तो अब शिफ्ट हुआ है मॉनसून से, विंटर रेन्स आ गई हैं और स्नोफॉल भी हो रहा है जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है वहाँ पे. With an evening hailstorm, the sky and hills got filled with a magnificent golden light. तो इवनिंग में हेलस्टॉर्म होता है, राइट. हेल्स, पेलेट्स ऑफ हेल्स आती हैं बहुत आंधी के साथ, ठीक है ना, ऑन द अर्थ सरफेस. और जो स्काई और हिल है, ठीक है ना, हिल्स हैं, दे हैव गॉट फिल्ड विद अ मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट कहते हैं अमेजिंग को, इनक्रेडिबल को, गोल्डन लाइट, बिल्कुल सुनहरे रंग से भर जाती हैं वो. We have now come to the next two entries, that is August 31st and October 3, and we are going to read them line by line. It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. तो अब लास्ट डे है अगस्त का, एंड जो लश मॉनसून ग्रोथ है, राइट, जो मॉनसून की वजह से ग्रोथ हो रही है वेजिटेशन में, दैट हैज़ रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट. बिल्कुल मैक्सिमम हो गया. पीक मतलब मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट. द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड. तो जो बीज है कोबरा लिली का, दे आर टर्निंग रेड. सिग्निफाइंग का मतलब होता है इम्प्लाइंग और इंडिकेटिंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, कि अब बारिश जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. इट विल स्टॉप. इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो. तो फर्न्स कहते हैं, जो मैंने पहले भी बोला था, अ ग्रुप ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स एंड हैव नीदर सीड्स नॉर फ्लावर्स. तो मैं फर्न्स अभी आपको इमेज में भी दिखाऊंगा. सो ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस स्पोर्स के थ्रू करते हैं. इनका ना सीड्स होती हैं, ना इनके बीजे होते हैं, ना इनमें फ्लावर्स आते हैं, राइट. तो अब उनके भी जो फर्न्स वो हैं, वो भी दे विल स्टार्ट टर्निंग येलो. अब जो उनके ग्रीन लीव्स हैं, ठीक है ना, उनका जो ग्रीन पार्ट है, दैट विल स्टार्ट टर्निंग येलो, पीला होने लगेगा. बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट. बट अभी क्या है, वो फर्म है, बिल्कुल मजबूत हैं, ग्रीन है, दे आर ग्रीन इन कलर, एंड अपराइट. अपराइट कहते हैं स्ट्रेट को. एंड अपराइट अगर ह्यूमंस के लिए बोलें तो अपराइट का मतलब ऑनेस्ट भी होता है, ईमानदार. ग्राउंड ऑर्किड्स, मोव लेडीज स्लिपर and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. तो जो ग्राउंड ऑर्किड्स हैं, अ काइंड ऑफ ऑर्किड, मोव लेडीज स्लिपर, राइट. मोव कहते हैं, एक वो शेड होता है, कलर होता है बिटवीन वायलेट एंड पिंक, एंड आई विल शो इट टू यू एज वेल इन वन ऑफ द इमेजेस, राइट. एंड जो वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स हैं, मतलब ये अलग अलग स्पीशीज हैं ऑर्किड्स की, दे पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले, बहुत स्टाइलिश वे में डिस्प्ले कर रहे हैं अपने आप को, ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर. तो ग्रासी स्लोप्स हमने बात की थी, राइट, जो स्टीप है, जो स्लोपी है,
उस पे पूरे के पूरे दे हैव सिंपली गॉट ब्लॉसम्ड। हर जगह आपको यही फ्लावर्स दिखाई देंगे अलग अलग टाइप के। Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. तो ये वाइल्ड डहेलियाज जो हैं अलग अलग कलर्स में, रेड में, येलो में, मैजेंटा में, रियर देयर हेड्स, रियर हमने बात की थी लिफ्ट, वो अपने सर उठा रहे हैं फ्रॉम द रॉकी क्रेविसेस। क्रेविसेस किसको कहते हैं? क्रैक्स को, जो बीच में मान लीजिए रॉक है, उसके बीच में जो क्रैक आ गया उसको हम क्रेविसेस कहेंगे। हमारे वॉल्स में भी आ जाता है, ठीक है ना। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, और वो वहाँ पे बहुत फर्मली ग्रो कर चुके हैं। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godowns. तो जो snakes हैं, जो rodents हैं, they have come out of their holes and burrows because पानी पूरा भर चुका है उसमें, they cannot stay inside, and now they have taken shelter, they have taken refuge in roofs, attics and godowns. जहाँ पे इंसान रह रहा है उनकी छतों में, उनके godowns में, उनके attics में, right? A shrew, that is a छछुंदर, my apologies. Weak of eyesight. Weak of eyesight मतलब vision is less than normal. तो जो एक आराम से जिसको देखा जा सकता है, जो एक विजन है, आईसाइट है, उससे भी कम है उसकी आईसाइट, ठीक है ना। Blunders about the rooms. Blunders about the rooms मतलब awkwardly, hurriedly, clumsily इधर उधर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा है बहुत अच्छे से। Much to the amusement of the children. अम्यूजमेंट यहाँ एंटरटेनमेंट, तो द किड्स आर गेटिंग, द चिल्ड्रन आर गेटिंग एंटरटेन्ड इन अ बिग वे। डोंट किल इट, एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर जो हैं वो एडमोनिश करती हैं। एडमोनिश का मतलब होता है टू स्कोल्ड, डांटना। वो डांट के बोलती हैं डोंट किल इट, मारना मत इसे। छुछुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। सो छुछुंदर्स आर कंसिडर्ड टू बी लकी। अगर आपके घर में छुछुंदर आता है इसका मतलब पैसा आएगा, राइट। दे ब्रिंग मनी। And sure enough, I receive a check in the mail. और मुझे भी एक चेक मिलता है। So check is an order to a bank to pay a stated sum from the draws account written on a specially printed form. तो मैं अभी आपको चेक भी दिखाऊंगा। तो उसमें जितना अमाउंट, अगर आपका मान लीजिए एक सेविंग्स अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, बैंक अकाउंट, आपने उसमें अमाउंट डाल दिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए, ठीक है ना। वांगचा ने 10 लाख रुपए डाल दिया और उसने चेक इशू कर दिया मेरे नाम पे, विनीत के नाम पे। सो आई कैन गो टू द बैंक, आई कैन डिपॉजिट द चेक एंड आई कैन गेट मनी दैट इज अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज, ठीक है। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। तो वो कहता है ऑथर कि बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं था जो चेक का अमाउंट था, बट ठीक है, सब चीज़ों का वेलकम है, बिकॉज एवरी पेनी काउंट्स। हर एक छोटे से छोटा पैसे का अमाउंट इट काउंट्स। कमिंग टू October 3rd डायरी एंट्री, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मॉनसून इनटू विंटर रेन। अब हम मॉनसून से सीधे विंटर रेन पे आ चुके हैं। स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, तो स्नोफॉल हो रहा है जो हायर ऑल्टीट्यूड्स हैं, हायर हाइट्स हैं जो, ठीक है ना। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जैसे हमने बात की, अ स्टॉर्म ऑफ हैवी हेल, और मैं हेल अभी आपको भी दिखाऊंगा भी। The sky and hills are suffused with a beautiful golden light. So जो sky और hills हैं, they have got simply covered. तो suffuse कहते हैं gradually spread through, धीरे धीरे, gradually मतलब धीरे धीरे फैल जाना, spread होना मतलब फैल जाना। तो it has simply got spread through the sky and hills, and with what? With a beautiful golden light. बहुत खूबसूरत सी एक गोल्डन स्ट्रीक आ रही है, लाइट आ रही है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर डायरी एंट्री। एंड नाउ विल मूव अहेड टू अदर entries and some images as well. And here we are on the last two diary entries dated January 26th and March 23rd. So first and foremost, we are going to read the summaries, try to understand it, and then we'll read the entries word for word. So the summary of January 26th diary entry is: the author was feeling very lonely as his friend who was staying with him was gone. सो जो ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड बहुत लोनली फील कर रहे थे, बहुत अकेला फील कर रहे थे, बिकॉज जो उनका दोस्त उनके साथ रह रहा था वो चला गया था, राइट। द ऑथर हैड साइलेंस फ्लोइंग विद इन
and everything was soaked in rainwater and the mist was lovingly touching the house, turning the surroundings darker. तो अंदर ही अंदर उनके साइलेंस फ्लो कर रहा था, कंप्लीटली साइलेंट थे अंदर से, एंड एवरीथिंग वाज सोक्ड इन रेन वाटर. बाहर जितनी भी चीज़ें थी वो बिल्कुल पूरी वेट थी, पूरी डैम्प हो गई थी और पूरी गीली हो गई थी रेन वाटर से. एंड द मिस्ट वॉज लविंगली टचिंग द हाउस, टर्निंग द सराउंडिंग्स डार्कर. और मिस्ट ने क्या किया था, पूरा आराम से उस घर को पूरा कवर कर लिया था और जो सराउंडिंग्स थी, आसपास की जगह थी, वो डार्क हो गई थी क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई थी. द ट्रीज हैड टर्न ग्रे एंड एडिंग टू हिज लोनलीनेस. जो ट्रीज थे आसपास, उनके जो लीव्स थे, दे हैड टर्न ग्रे, राइट, फ्रॉम ग्रीन टू ग्रे, एंड वो और ज़्यादा उनको लोनली फील करवा रहे थे. ही वॉज फीलिंग मोर एंड मोर लोनली, राइट. कमिंग टू द summary of the diary entry dated March 23rd. Towards the end of March, winter ended. अब जब मार्च का एंड आ गया तो विंटर्स भी खत्म हो गई. मसूरी एक्सपीरियंस्ड हेल स्टॉर्म फॉर हाफ एन आवर. फिर से एक हेल स्टॉर्म होता है हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए. एंड द स्काई टर्न्ड क्लियर विथ रेनबो इन साइट. एंड स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाती है एंड रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है वहाँ पे. एंड नाउ विल जंप टू द एंट्रीज, अंडरस्टैंडिंग वर्ड फॉर वर्ड the glossary and subsequently the images as well of certain parts and certain things, right? We will now read the diary entry dated January 26th and it is titled as Winter Rains in the Hills. In the hushed silence of the house when I'm quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within. तो जो ऑथर है वो बोलते हैं इन द हश्ड साइलेंस. हश्ड साइलेंस कहते हैं सडन स्टिलनेस और काम, बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन जब बिल्कुल कामनेस आ जाती है ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन. अकेला हूँ मैं. क्यों? बिकॉज माई फ्रेंड हु वॉज हियर, जो मेरा दोस्त है जो यहाँ पे था, ही हैज़ गॉन, वो चला गया है जो मेरा दोस्त था. इट इज़ वेरी लोनली, वेरी क्वाइट. बहुत अकेलापन है, बहुत शांति है. एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस. लिक्विड साइलेंस कहते हैं कंप्लीट साइलेंस एनवेलपिंग समवन. एनवेलपिंग मतलब बिल्कुल कवर कर रहा है, ठीक है ना. अ साइलेंस विद इन, पूरा अंदर से जो ऑथर है वो साइलेंट है. Surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window panes. तो जो ये सारा का सारा है वो किससे सराउंडेड है, किससे कवर्ड है? बाय द रिदम ऑफ रेन. रिदम होता है स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड. जैसे मान लीजिए रेन्स आ रही हैं, टप टप टप, ये रिपीटेड पैटर्न है साउंड का और ये रिदम बन जाता है. स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स. स्टेडी का मतलब होता है बैलेंस्ड. ड्रिफ्ट का मतलब होता है इट्स बी कैरिड स्लोली बाय अ करेंट ऑफ एयर और वाटर. तो वो ड्रिफ्ट हो रहा है पानी धीरे बैलेंस्ड वे में. किसके ऊपर पानी ड्रिफ्ट हो रहा है, किसके ऊपर आ रहा है? लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज. ऑन लेमन्स, नींबू के ऊपर. ऑन रूफ, राइट, छत जो है. ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डहेलियाज, और नॉइस प्रोड्यूस कर रहा है किस पे? ड्रेंच्ड. ड्रेंच का मतलब होता है वेट, थरली और सोक्ड, कंप्लीटली गीला. डहेलियाज एंड विंडो पेन्स. विंडो पेन कहते हैं सिंगल शीट और सेक्शन ऑफ ग्लास. जो हमारे विंडोज़ होती हैं उस पर जो ग्लास लगता है विद इन द विंडो फ्रेम, फ्रेम के अंदर जो ग्लास लगता है उसको हम विंडो पेन कहते हैं, ठीक है. उसके ऊपर वो ड्रम कर रही हैं. वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क केयर्स. और जो मिस्ट है उसने हाउस को बिल्कुल कवर कर लिया है, घर को बिल्कुल कवर कर लिया है. किसमें? इन अ डार्क केयर्स. केयर्स कहते हैं अ जेंटल और लविंग टच को. तो उसने बिल्कुल हर जगह से उसने ऐसे जेंटली, उसने लविंगली उसको कवर कर लिया है. एंड इट हैज़ टर्न डार्कर. एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन. तो मैं जैसे ही पॉज करता हूँ, पॉज मतलब अ टेम्परेरी स्टॉप, स्टॉपिंग फॉर सम टाइम. एक विंडो के पास, यहाँ पे कौन बोल रहा है? रस्किन बॉन्ड बोल रहा है. द रेन स्टॉप्स
बारिश बंद हो जाती है एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर शुरू हो जाती है. And the trees no longer green but grey menace with their loneliness. Menace me with their loneliness. और जो trees हैं, जो आसपास हैं, अब वो हरे भरे नहीं हैं. They are not green any longer but grey हो चुके हैं वो. Menace me with their loneliness. और मुझे threaten करते हैं, मुझको डराते हैं. किससे? उनकी अपनी loneliness से, अपने अकेलेपन से. Coming to the entry for March 23rd, dated March 23rd. लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर. तो अब मार्च का एंड आने वाला है, विंटर्स का एंड हो रहा है, राइट. द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी. तो ब्लैकेस्ट मतलब इतने ज़्यादा मैंने क्लाउड्स इतने काले कभी भी नहीं देखे थे. आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी. स्क्वाटेड ओवर का मतलब होता है सिट विथ नीज बेंट. जब हम अपने घुटने को मोड़ के बैठते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में कि पूरे वो जो क्लाउड्स हैं, ब्लैकेस्ट क्लाउड्स हैं, वो पूरे के पूरे एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो स्क्वाट पोजीशन में पूरे मसूरी को उन्होंने कवर कर लिया है. एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर. और फिर हेल गिरता है जो मार्बल की फॉर्म में, राइट, फॉर हाफ एन आवर. तो हेल होता है बेसिकली पेलेट्स होते हैं जो एक तरह से आप समझिए फ्रोज़न आइस है, ठीक है ना, फ्रोज़न वाटर है, वो उसका पेलेट्स गिरते हैं एंड दे आर वेरी हार्ड. बहुत हार्ड होते हैं. अगर आपके ऊपर बहुत मोमेंटम से गिरे, सो इट मे कॉज एन इंजरी एंड इट हैज़ अ डैमेजिंग प्रॉपर्टी एज वेल. बहुत सारी चीज़ें नष्ट भी हो जाती हैं. बहुत सारे क्रॉप्स रूइन हो जाते हैं. क्रॉप्स बहुत ख़राब हो जाते हैं व्हेन देयर इज़ अ हेल स्टॉर्म. Anyway, nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. तो hailstorm से ज़्यादा अच्छा कोई स्काई को क्लियर नहीं कर सकता. एक बार hailstorm हो जाता है तो स्काई जो है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाती है. एंड ये ऑथर लिखता है कि इवन एज आई राइट, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ फ़िलहाल, डायरी एंट्री कर रहा हूँ ऑन March 23rd, आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग. मैं एक इंद्रधनुष, रेनबो इंद्रधनुष को कहते हैं हिंदी में, वो जिसमें विबग्योर है, जिसमें 7 कलर्स हैं, वो फॉर्म हो रहा है, वो बन रहा है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दीज डायरी एंट्रीज मेड बाय रस्किन बॉन्ड ऑन मॉनसून, transition from monsoon to winters and end of the winters. And now we'll jump to some images followed by comprehension check and other exercises. Here are some images for our better and practical understanding. The first image is of hailstorm, right? Hail is pellets of ice balls, right? So they simply have covered the entire Earth's surface. They are damaging and they can even cause injury as well. The next image is of ferns, right? A vascular plant that we spoke of that can reproduce using, through their spores, but they don't produce seeds and they don't have flowers. The next one is grassy slopes, and you can see the grassy slopes are covered with flowers of different species, different kinds, and various hues and colors as well. The next image is of a shrew, that is chuchundar, and the last image is of crevice, that is a crack, and you can see a flower blossoming out of the crack on its own. Here are some more images. The first one is of check that we spoke of. The next one is of rainbow, that is Vibgyor, 7 colors. The next image is of mauve color, which is a shade between violet and pink. And the last image is of squat position, that is keeping the knees bent. We have now come to the comprehension check, and under this comprehension check, we have the first question as, when does the monsoon season begin and when does it end? How do you prepare to face the monsoon? So the monsoon season, the answer is the monsoon season in Mussoorie begins from June 24th or 25th. By August 2, the people are fed up with rain. It ends by August 31st. Then begins winter rains, which end by late March. We take out our raincoats and umbrellas to face the monsoon.
सो ये इसमें डेट्स लिखी हुई हैं, कब मॉनसून सीजन शुरू होता है, कब बिल्कुल लोग परेशान हो जाते हैं, कब तक ख़त्म होता है, फॉलोड बाय विंटर रेन्स एंड व्हेन द विंटर्स गेट ओवर. और हम रेन कोट्स निकाल लेते हैं, अम्ब्रेलाज निकाल लेते हैं टू फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय द मॉनसून. क्वेश्चन 2 इज विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द डायरी एंट्री. कौन से हिल स्टेशन पे वो है? मसूरी में. ही स्टेज इन मसूरी. Question 3 is for how many days does it rain without stopping? What does the author do on these days? So it rained non-stop for 8 or 9 days, जो कि August 12th की डायरी एंट्री में है. Right after August 3rd, the author kept pacing the room, मतलब moving to and fro, right, back and forth, and kept looking out of the window. और बाहर देखता रहता है because he had nowhere to go, nothing to do. Question 4 is where do the snakes and rodents take shelter? Why? The snakes and rodents take shelter in roofs, attics and godowns. They do so because their holes are flooded with rainwater. तो snakes and rodents कहाँ पे shelter लेते हैं, कहाँ पे refuge लेते हैं? roofs में, attics में, godowns में. and क्यों लेते हैं? because उनके जो holes and burrows हैं they are flooded with rain water. उसमें पूरे का पूरा बारिश का पानी घुस चुका होता है. Question 5 is what did the author receive in the mail? तो author को पोस्ट में क्या आया था? The author received a check in the mail. Right? उसको एक चेक मिला था. And now is the turn of the section working with the text. Under this, question 1 is look carefully at the diary entries for June 24-25, August 2 and March 23rd. Now write down the changes that happen as the rain progress from June to March. So the answer is rains in Mussoorie begin in June and end by March. June 24th is the first day of monsoon mist which covered the hills and spreads silence. On August 2 it rained all night and made sleeping difficult. By late March ends winter as well as the rains. So this is what we have been able to find out from all these diary entries as mentioned. Question 2 is why did the grandmother ask the children not to kill the chuchundar? तो दादी माँ ने क्यों बच्चों को बोला कि छुछुंदर को, श्रीयू को नहीं मारना है? The grandmother told the children not to kill chuchundar as it is believed that they bring good luck and fortune. उनको लकी माना जाता है और ये माना जाता है पैसा लेके आएंगे, फॉर्च्यून लेके आएंगे. राइट. क्वेश्चन 3 अंडर द सेम सेक्शन इज व्हाट साइंस डू वी फाइंड इन नेचर विच शो दैट द मॉनसून्स आर अबाउट टू एंड. तो कौन से इंडिकेशंस हैं नेचर के, राइट, जो बताते हैं कि अब मॉनसून जाने वाला है. बाय द एंड ऑफ द मॉनसून द ग्रीनरी इज एट इट्स पीक. तो ग्रीनरी बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाती है. द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली टर्न रेड. और जो कोबरा लिली है उसके सीड्स जो हैं वो रेड होने लग जाते हैं. अ रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई. और जैसे ही रेनबो फॉर्म होता है क्लियर स्काई होती है. सो ऑल दीज आर इंडिकेशंस, ऑल दीज आर साइंस गिवन बाय द नेचर which indicate that the monsoon is coming to an end. We have now come to question 4 of the same section, that is working with the text. And the question states complete the following sentences. I'm going to tell you the entire answer reading the parts one after another. Biju is not seen but his voice is heard because dense mist had covered and hid the hills. Hid का मतलब hide से बना है, उसको छिपा दिया था hills को. और बाकी भी हर सराउंडिंग्स को. तो बीजू की आवाज़ तो आ रही थी बट वो दिखाई नहीं दे रहा था. द सेकेंड पार्ट इज द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट. द थर्ड पार्ट इज द लेपर्ड वाज सक्सेसफुल इन किलिंग अ डॉग but had to flee. Flee का मतलब to run away. When it attempted to attack a cow as Biju's mother arrived crying curses. तो लेपर्ड सक्सेसफुल हो गया था कुत्ते को मारने में. बट व्हेन इट अटैक्ड अ काउ, बीजू की मदर आ जाती हैं क्राइंग कर्सेस, मतलब उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाती हुई, गालियाँ देती हुई, कर्स करती हुई. राइट. फोर्थ वन इज द मिनिवेट्स आर easily noticed because of their bright colors. The fifth part is it looks like a fashion display on the slopes when they are covered by a variety of flowers.
And the next part is, sixth part is, during the monsoon season, snakes and rodents are found in roofs and attics, and of course go downs as well, because their holes are flooded with water and these places provide them convenient shelter. तो स्नेक्स एंड रोडेंट्स ज़्यादातर आप रूफ्स में, एटिक्स में, गोडाउंस में मिलेंगे, बिकॉज उनके जो होल्स होते हैं वो वाटर से पूरे भर जाते हैं. एंड दीज प्लेसेस, दैट इज रूफ्स, एटिक्स, गोडाउंस, दे प्रोवाइड देम कन्वीनियंट शेल्टर. उन वहाँ पे उनको अच्छा शेल्टर मिल जाता है. And here we are on question 5 under the same section, that is working with the text. And it reads, although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. So we have already discussed it. The question, this question has 3 parts. The first part is, why has the writer used the word springing? तो स्प्रिंगिंग वर्ड क्यों यूज़ किया है? द वर्ड स्प्रिंगिंग इज़ यूज टू शो सडननेस विथ विच वाटर स्टार्ट्स लीकिंग. तो उस सडननेस के साथ, उस जल्दी के साथ, ऑल ऑफ अ सडन के साथ, आउट ऑफ द ब्लू के साथ, जिसमें वाटर लीक होने लगता है. क्वेश्चन 2, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5. हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन? ही इज अनटच्ड बिकॉज ही इज इनसाइड द रूम, राइट? ही इज नॉट गेटिंग ड्रेंच्ड in the rainwater completely. Part 3 of question 5 is, how is the writer in touch with the rain at the same time? तो फिर writer touch में कैसे रेन के? He hears the drumming of rain on the tin roof. तो पहले तो ड्रम जैसा नॉइज हो रहा है tin roof पे, because there is pitter and pattering of the rain droplets. He also looks out of the window to see the rains. वो बाहर भी देख रहा है, रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं incessantly, continuously. Also, some drops here and there leak through the roof and touching the lives of those residing inside. और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा लीकेज घर के अंदर भी है from the corrugated tin roof, और थोड़ा बहुत वो जो बूंद हैं, राइट, जो ड्रॉपलेट्स हैं, they are simply touching the residents, the people residing inside. The residents मतलब जो लोग अंदर रह रहे हैं. So this is what the answer is, and now we'll jump to the next one. Question 6 under the same section, that is working with the text, is, mention a few things that can happen when there is endless rain for days together. तो कुछ चीज़ें ऐसी बताइए जो होती हैं जब बिल्कुल बारिश हो रही हो for days together, कई दिनों तक. A long spell of rain makes life miserable. पहली बात तो सब कुछ स्टिल हो जाता है, कुछ हो ही नहीं पाता है, काम ही नहीं हो पाता है. One is closed up in his room or her room. बिल्कुल हम लोग बंद रहते हैं, confined रहते हैं अपने घरों में. Everything becomes damp and soggy. सब कुछ बिल्कुल वेट हो जाता है, बिल्कुल सॉगी हो जाता है. Rodents, snakes and insects enter the house for shelter. तो rodents, snakes और insects आ जाते हैं घरों में शेल्टर के लिए. Question 7. What is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end? तो क्या importance क्या है cobra lily की in relation to the monsoon season? So at first cobra lily appears with the arrival of the monsoon. तो कोबरा लिली कब अपीयर होती है? जब मॉनसून अराइव करता है, जब मॉनसून आता है. When the cobra seeds begin to turn red, और जब कोबरा लिली के सीड्स जो हैं वो रेड होने लग जाते हैं, राइट, इट इंडिकेट्स द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड. वो एक इंडिकेशन होता है कि अब रेन्स या मॉनसून सीजन खत्म होने वाला है, इट इज़ कमिंग टू एन एंड. Here is working with language section. And the question is, put the verbs in the brackets into their proper forms. The first one is done for you. The first part is, we got out of the school bus. The bell was ringing and everyone was rushing to class. तो हम स्कूल बस से उतरे, बेल रिंग हो रही थी, and everyone was rushing to class. Everyone was going hurriedly to class. जल्दी जल्दी जा रहे थे क्लास में अपने. The second part is, the traffic stopped. Some people were sitting on the road and they were shouting slogans. तो ट्रैफिक रुक गया था, कुछ लोग रोड पे बैठे थे एंड वो स्लोगन्स चिल्ला रहे थे. थर्ड पार्ट इज, आई वोर माई रेन कोट, इट वॉज रेनिंग एंड पीपल वर गेटिंग वेट. द फोर्थ पार्ट इज, शी सॉ अ फिल्म, शी वॉज नरेटिंग इट टू हर फ्रेंड्स हु वर लिसनिंग केयरफुली. तो वो एक मूवी देख के आई थी, वो अपने दोस्तों को नरेट कर रही थी स्टोरी, और वो बहुत अटेंटिवली उसको सुन रहे थे. वी वेंट टू द एग्जीबिशन. Some people were buying clothes while others were playing games.
सो हम एक एग्जीबिशन में गए जहाँ पे कुछ लोग कपड़े खरीद रहे थे, वाइल अदर्स वर प्लेइंग गेम्स, और बाकी लोग गेम्स खेल रहे थे. द लास्ट पार्ट इज, सिक्स्थ पार्ट इज, द क्लास वॉज क्वाइट, राइट. सम चिल्ड्रन वर रीडिंग बुक्स एंड द रेस्ट वर ड्राइंग. सो पूरी क्लास शांत थी, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे किताबें और बाकी सब क्या कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे. We have now come to the question that is part 1 under the same section, that is working with language, where it states match these words with their correct meanings. So A part is to fall in small drops, that is drip. B part is to make a sound by hitting a surface repeatedly, that is drum. C part is to move quickly through the air making a soft sound, a hissing sound, swish. Part D is harsh sound made by birds, caw. Last part is ringing sound of a bell or breaking glass, etc. That is tinkle. So do remember them and you must use them wherever needed, not only in exams but beyond. Coming to the second part. Now fill in the blanks using the correct form of the words given above. A part is Ramesh drummed on his desk in impatience. बहुत रेस्टलेसनेस के साथ ड्रमिंग कर रहा था अपने डेस्क पे. बी पार्ट इज रेन वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द अम्ब्रेला ऑल ओवर द कारपेट. तो धीरे धीरे करके ड्रिप हो रही थी स्मॉल ड्रॉप्स में और पूरे कारपेट को उसने सोक कर लिया. द पोनी स्विश्ड इट्स टेल. द नेक्स्ट वन इज द टिंकल ऑफ ब्रेकिंग ग्लास वोक मी अप. एंड द लास्ट वन इज पार्ट ई इज द कॉइंग ऑफ द रेवन डिस्टर्ब द चाइल्ड्स स्लीप. तो जो कॉइंग है हार्श साउंड बर्ड्स की है, उससे, और रेवन की इनफैक्ट, उससे बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब हो गई. Question 4 under the same section, that is working with language, states complete each sentence below by using appropriate phrase from the ones given below. So I've written the answers and I've highlighted them in bold. So the first one is, I saw thick black clouds in the sky and sure enough, it soon started raining heavily. The next part is part 2. The blue umbrella was big enough for the brother and sister. Third part is the butterflies are colorful enough to get noticed. The fourth one is the lady was brave enough to chase the leopard. Part 5 is the boy was anxious enough to call to his sister. Sixth one is the man was kind enough to offer help. Seventh part is the victim's injury was serious enough for him to get admitted in hospital. Eighth part is that person was foolish enough to repeat the same mistake again. And the ninth part is, the last part is, he told me he was sorry and he would compensate for the loss. I said, fair enough. We have now come to the section writing. I have written a paragraph for you for your better understanding. I've not touched the second part, that is write a poem, but I've done the first one for you. So the question is, the monsoons are a time of great fun and even a few adventures. Playing in the rain and getting wet, wading through knee-deep water on your way to school, water flooding the house or the classroom, power cuts and so on. Write a paragraph describing an incident that occurred during the rains which you can never forget. So we have to write an unforgettable experience during the monsoon season. So I have written a paragraph for you and let us enjoy it together. The day was bright and sunny after 2 long days of heavy downpour. तो 2 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही थी, बट आज का दिन जो था वो bright and sunny था. The sky was clear and it seemed that it will not rain for the day. तो sky पूरा clear थी और ऐसा लग रहा था आज बारिश नहीं होगी, आज के दिन बारिश नहीं होगी. I was tired of carrying the umbrella and decided to leave it at home. तो मैं बिल्कुल थक गया था अम्ब्रेला कैरी कर करके for last 2 days. And I decided to leave it at home. मैंने सोचा आज मैं इसको घर पे छोड़ दूंगा. As the school ground was still quite wet, there was no assembly. तो स्कूल का ग्राउंड जो था अभी भी गीला था, वेट था, तो कोई असेंबली नहीं होनी थी, कोई असेंबली हो नहीं रही थी.
I reached halfway through to the building when I heard the thundering clouds. तो मैं अभी हाफ वे पहुंचा था, आधे रास्ते पहुंचा था बिल्डिंग के, किस बिल्डिंग के, स्कूल बिल्डिंग के. When I heard the thundering clouds, जब मुझे गड़गड़ाते बादलों की आवाज सुनाई दी. Within a fraction of second the sky was overcast and there was darkness all around. और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब सेकेंड के कुछ मोमेंट्स के अंदर, राइट, स्काई पूरा ओवरकास्ट हो गया, पूरा डार्क हो गया एंड हर जगह डार्कनेस फैल गई. Before I could take a leap to the school building, the huge droplets of rain started falling with a great force. तो इससे पहले मैं लीप ले पाता, मैं जंप कर पाता, मैं भाग पाता towards the school building, right? What happened was that huge droplets of rain started falling with a great force. तो बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी, बहुत बड़ी बड़ी बूंदें, मतलब वो उस पे आने लग गई सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे, with a great force. I tried to run for some shelter, but the ground was muddy and wet, on which I slipped and got covered in mud all over. तो मैंने कोशिश की भागने की, to take some shelter, कि मैं किसी शेड के नीचे चला जाऊं, but the ground was muddy and wet. तो जो ग्राउंड था मडी था, जो सॉइल थी it had got mixed with water, it had turned muddy, और पूरा गीला गीला था. सो क्या हुआ, उसमें मैं स्लिप कर गया, मैं फिसल गया एंड गॉट कवर्ड इन मड ऑल ओवर, और पूरा हर जगह मिट्टी मिट्टी हो गई मेरी पूरी यूनिफॉर्म. आई वॉन्टेड टू क्राई एंड स्क्रीम बट डिसाइडेड टू एंजॉय एंड मेक द पिटर पैटरिंग ऑफ रेन्स एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. तो चाहता तो मैं था कि मैं रोऊं चिल्लाऊं, बट देन आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू एंजॉय and I'm going to make this pitter pattering of rains, right, an unforgettable experience. ऐसा experience मैं जिसको कभी ना भूल पाऊँ. I started jumping in puddles, dancing like a free-flowing breeze, and singing loudly as if cawing. My apologies. So मैं puddles में जो gathering of water होता है, ठीक है ना, in small holes, potholes, उस पे jump करने लगा, ठीक है. डांसिंग लाइक अ फ्री फ्लोइंग ब्रीज, एक हवा के जैसे बिल्कुल नाचने लगा. एंड सिंगिंग लाउडली एज इफ कॉइंग, हार्श साउंड में गाने लगा, मतलब गाने लगा बहुत जोर जोर से, एज इफ आई एम कॉइंग मतलब हार्श साउंड ऑफ द बर्ड्स, राइट. तो onlookers, that is my classmates, were laughing at me from a distance, but I was carefree and high spirited. जो onlookers हैं, जो देख रहे हैं मुझे, कौन, मेरे स्कूल मेट्स, राइट. They were laughing at me from a distance. तो वो सारे के सारे स्कूल बिल्डिंग के अंदर हैं और वो एक डिस्टेंस पे हैं, and they're laughing at me. But I was carefree and high spirited. But I cared two hoots. मुझे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, and I'm just enjoying it. And now I'm going to recite the poem titled The Oak, composed by Norma Farber, which is given at the end of the page, that is page 121. The oak stands straight and tall. तो जो ओक ट्री है वो बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल लंबा खड़ा हुआ है, बट नॉट इन बूट्स, उसने कोई हाई शूज़ नहीं पहने हुए हैं, नॉर एनी शूज़ एट ऑल, या कोई भी जूते नहीं पहने, जस्ट इन रूट्स, उसकी जड़ें हैं, उसकी जो रूट्स हैं उसकी वजह से वो इतना टॉल एंड स्ट्रेट खड़ा हुआ है. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड. आई विश यू ऑल लक. You will have 2 more videos covering the 2 remaining chapters. Do well, and I'm sure you're simply going to come out with flying colors. God bless you all. Bye for now.